Hello students, welcome back to the Tantreshwar physics classes, and presently we are doing fourth chapter of the 11th class and vectors. इस vectors मैंने कुछ लेक्चर दिए हैं, उसमें हमने किया है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टरेशन कल हमने किया है और उसमें हमने दिखाया है कि हाउ टू वेक्टर्स आर कंबाइंड फॉर्म ए रिजल्टेंट वेक्टर या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से भी किया और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी किया। वो कल के लेक्चर आप देख सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 3 या 4 वेक्टर हों तो कैसे हम उनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स। सपोज वी हैव टू कंबाइन 5 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स. There we can't use triangular law of vector addition और we can't use parallel law of vector addition. तो वही हमने यूज करना है polygon law of vector addition. polygon law of vector addition. law of vector addition. ये हमने यूज करना है। What is polygon law of vector addition? Where we have to add so many vectors. उसमें क्या टेक्निक है? उसमें टेक्निक ये है कि ये जो वेक्टर्स हम ऐड करने जा रहे हैं, they are just taken the sides of a polygon. There are several vectors that we need to add. The vectors, this ऐसे देखो, the sides of a polygon represent the vectors. The sides of a polygon represent the vectors, and the vectors are taken in the same order, clockwise or anti-clockwise, clockwise or anti-clockwise, clockwise or anti-clockwise. वेक्टर्स को क्लॉकवाइज लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, and these vectors are taken to be the sides of a polygon, many side figure polygon. The sides of a polygon represent the vectors, and the vectors are taken in the same order, clockwise or anti-clockwise. Then the resultant of the vectors is given by whom it is given? Who gives the resultant of the vectors? Given by the closing side of the polygon, taken in the opposite order, जिस ऑर्डर से हमने वेक्टर लिए हैं, ये जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगन का, that closing side should be taken in the opposite sense or opposite order. पहले ये लिखो, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। The sides of a polygon represent the vectors, and the vectors are taken in the same order, clockwise or anti-clockwise. Then the resultant of the vectors is given by the closing side of the polygon taken in the opposite order. That's all. अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड पॉइंट, ये एक पॉइंट नंबर 1 समझो, इसको डेफिनेशन समझो या पॉइंट नंबर 1 समझो। पॉइंट सेकंड, जैसे ये मेरे पास एक वेक्टर, ये वेक्टर ए है, दिस वेक्टर ए
Now if I want to add this vector A to the vector B, what I do? I put the vector A, vector B on the on A. I will put the tail of the vector B on the head of the vector A. That's what we do. वही करते हैं ना हम B को ला करके यहाँ रखते हैं और उसका जो टेल है A के हेड पर रखते हैं और B को आगे के लिए आगे ले जा करके एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस. ये और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिजल्टेंट, आप A के टेल को किसके साथ कनेक्ट करेंगे? B के हेड के साथ. लेकिन अब दो वेक्टर नहीं है, सपोज तीसरा वेक्टर C है और जो अब C है इसका टेल B के हेड पर रखना है. The vector C is drawn on the vector B. The vector C is drawn on the vector. Drawn means tail इस पर vector B के हेड पर रखना है, means drawn. You draw the vector C on vector B means ये जो C वेक्टर है इसका टेल B वेक्टर पर है. और मैं आपसे पूछता हूं अब जरा मुझे रिजल्टेंट बताइए. You will connect the tail of A to the head of C. ठीक, that will give you the resultant. लेकिन अब सपोज मेरे पास और एक वेक्टर है D. अब रिजल्टेंट again connect A to the head of the D. That will give you the resultant. अगर और एक वेक्टर E, ये सब वेक्टर्स है और इन सब वेक्टर का रिजल्टेंट मुझे चाहिए. अब ये तो पॉलीगन बन गया है लेकिन एक साइड भी रहता है टू क्लोज द फिगर. तो मतलब ये है कि ये तो हमने लिखा है ऐसे देखो, the sides of a polygon represent the vectors and the vectors are taken in the same order clockwise or anti-clockwise. Then the resultant of the vectors is given by the closing side of the polygon taken in the opposite order. तो ये देखो, the vectors are the sides of the polygon, the vectors are represented by the sides of the polygon. The vectors are represented by the sides of the polygon taken in the same sense, same order, maybe clockwise, anti-clockwise भी ले सकते थे. हमने anti-clockwise लिया तो clockwise भी ले सकते थे. Then now this is the closing side. Closing side is taken in the opposite order. ऐसे देखो, ऐसे. The tail of A is connected to the head of E in the opposite sense, like the resultant का tail जो है वो A पर है, A के tail पर है और head touches the head of the last vector. So this is the resultant of all these vectors. So resultant is given by the closing side of the polygon. तो मैं यहां हम लिख सकते हैं वेक्टर R is equal to वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर ए. ये है रूल. दिस वेक्टर R is the resultant of all these vectors. This vector R is the closing side of the polygon and is taken in the opposite sense. तो मतलब साफ हुआ, आप जितने भी वेक्टर लो एक ही सेंस में, लास्ट में टेल ऑफ द फर्स्ट को हेड ऑफ द लास्ट के साथ कनेक्ट करना है. दैट इज ऑल. दिस इज द. हाँ, अब आप कहेंगे वेक्टर R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ D प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ P. वो गलत है. अब खुद सोचो, अगर ये सपोज A का मैग्नीट्यूड 2 है, B का भी 2 है, C का भी 2 फॉर एग्जांपल, D का भी 2 यूनिट्स है, E का भी 2 यूनिट्स है, क्या R का मैग्नीट्यूड 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10 है? नहीं है. इसका मैग्नीट्यूड 10 आपको लगता है? नहीं लगता है. इसलिए ये लिखना है कि मैग्नीट्यूड R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड A प्लस मैग्नीट्यूड B प्लस मैग्नीट्यूड C प्लस मैग्नीट्यूड D प्लस मैग्नीट्यूड E. गलत बात है. हाँ, एक और चीज आप लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है. वेक्टर R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये सारा लिया ऐसे करके, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D, सारे का मैग्नीट्यूड ऐसे कुछ, वो आप कर सकते हैं. ये लाइन यहाँ डालकर और लाइन लास्ट लाइन यह लाइन यहाँ डालकर, वो ठीक है. लेकिन ऐसे लिखना है कि वेक्टर R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड A प्लस मैग्नीट्यूड B प्लस मैग्नीट्यूड C, वो गलत है.
ये गलत है, इन जनरल ये गलत है। एज ए स्पेशल केस हो सकता है, ये ठीक भी हो सकता है, अगर सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ये ठीक होगा, मगर इन जनरल ये गलत है, इन जनरल ये ठीक है। ठीक, तो ये गलत इक्वेशन है इन जनरल। एज ए स्पेशल केस ये भी ठीक बनाया जा सकता है। अच्छा, नंबर थर्ड, अगर मैं वेक्टर्स को क्लोज अप ही करूंगा, इफ द वेक्टर्स क्लोज अप, सपोज व्हाट डू यू मीन इफ द वेक्टर्स क्लोज अप? इफ वेक्टर्स क्लोज अप, then the resultant is 0। कैसे, मैं बताता हूं। सपोज आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बताइए रिजल्टेंट, इस टेल को हेड के साथ कनेक्ट करना है, हो गया रिजल्टेंट। ठीक, बताइए रिजल्टेंट क्या करेंगे? सी के टेल को बी पर हेड पर रख दिया और आगे जाकर के एक्सटेंड वेक्टर कर दिया, या आप लिख सकते हैं कि वेक्टर सी इज ड्रॉन ऑन द हेड ऑफ वेक्टर बी, वो भी आप लिख सकते हैं। ड्रॉन मीन्स यू हैव टू पुट द टेल ऑफ वेक्टर सी on the head of B and put the vector in the forward direction। तो मैं पूछूंगा what is the resultant, आप कहेंगे सर इस A के टेल को C के हेड के साथ मिला दीजिए, वही हो गया रिजल्टेंट। इन द अपोजिट सेंस, ये जो वेक्टर्स का डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब जरा निकालिए रिजल्टेंट, दिख रहा है आपको कि रिजल्टेंट कम हो रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। चलिए ठीक है, अब बताइए रिजल्टेंट और कम हो गया, तो अगर रिजल्टेंट निकालना है तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं और एक वेक्टर रखूंगा ऐसे, when the head of the last vector touches the tail of the first vector, ये मैंने उल्टा नहीं रखा, मैंने ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रखा। ये जो लास्ट वेक्टर है एफ वेक्टर, तो अब क्या मिलाओगे आप? टेल ऑफ फर्स्ट द हेड ऑफ लास्ट, लेकिन वो तो टच कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट कुछ बचा ही नहीं, रिजल्ट तब बचता जब ये वेक्टर नहीं होता तो रिजल्ट बचता। लेकिन मैंने और एक वेक्टर बनाया जिसका हेड जो है वो टेल के साथ टच कर रहा है, इसका मतलब दिस इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर्स क्लोज अप। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? व्हेन वेक्टर्स क्लोज अप। वेक्टर्स क्लोज अप का मतलब ये है कि व्हेन द हेड ऑफ द लास्ट टचेस द टेल ऑफ द फर्स्ट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय क्लोजिंग अप ऑफ द वेक्टर्स। तो ये तो हो गया जीरो, बिकॉज अब रिजल्टेंट बचा ही नहीं। तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ, इन सब वेक्टर्स का एड इज इक्वल टू 0। अब ये कहना है कि ये एड, अगर ये 2 मीटर है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, फिर सम करके ये सारे ऐड क्यों नहीं हो? ये उस तरीके से जिस तरीके से स्केलर ऐड होता है, वेक्टर ऐसा है नहीं, दे हैव देयर ओन बिहेवियर। तो अब याद रखो, व्हेन वेक्टर्स क्लोज अप द रिजल्टेंट इज 0। क्लोज अप मीन्स व्हेन द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर टचेस द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये ठीक हो गई एक बात। फोर्थ पॉइंट, अगर मेरे पास यह सिचुएशन है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, लेकिन वेक्टर डी कुछ ऐसे है, वो उल्टा है, और वेक्टर ई है ये, और वेक्टर एफ ये है। ये भी क्लोज अप हो गया, मगर इसमें एरोज का जो ऑर्डर है वो मैंने
बीच बीच में चेंज किया है, एरोज का ऑर्डर वो नहीं है। वहाँ पहले इस सिचुएशन में एरोज का ऑर्डर वही था, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सब वेक्टर्स का सेंस एंटी क्लॉकवाइज था। लेकिन यहाँ कुछ कुछ वेक्टर्स का ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला ई वाला, और ये फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला फिर एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज है एफ। मतलब कुछ का सेंस उल्टा है। अगर इसको आप ऑर्डर कहेंगे तो ये कुछ एंटी ऑर्डर के हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेक्टर्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेक्टर्स। बिटवीन द वेक्टर्स, यहां पर क्वेश्चन ये मतलब पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डी, ई और एफ में क्या आपस में रिलेशन है। और जरा देखो, मैं आपको बताऊंगा रिलेशन कैसे निकालोगे। आप एक डायरेक्शन को क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूँ। इस डायरेक्शन में जब मैं जाऊँगा तो पॉजिटिव लूँगा वेक्टर। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ वेक्टर ए है तो लिखा ऐसे, ठीक। ये तो क्लोजअप फिगर है, फिगर पूरा क्लोजअप है। ये वेक्टर ए है, ठीक, प्लस बी, क्योंकि इसका सेंस भी ही है, प्लस सी, इसका भी सेंस ही है। अब डी को प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा डी, क्योंकि उसका सेंस अपोजिट है, वो क्लॉकवाइज है। और ई, उसको प्लस ई करना पड़ेगा क्योंकि उसका सेंस वही है जो ए का सेंस है। तो एफ का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज, तो माइनस एफ कर दिया इज इक्वल टू 0। तो आप पॉइंट ए जो है ओ, आप फिर से इस पॉइंट ए के पास आ गए, वेक्टर्स को ऐड करके एल्जेब्रिक सम ऑफ द वेक्टर्स, क्योंकि कोई वेक्टर पॉजिटिव आएगा, कोई वेक्टर नेगेटिव आएगा, उसको एल्जेब्रिक सम कहते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई माइनस वेक्टर एफ, तो पहुंच गए इधर, इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखा जा सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ई, जो नेगेटिव है उनको राइट की साइड की ओर ट्रांसफर करो, तो राइट साइड इज वेक्टर डी प्लस वेक्टर एफ, ऐसे कुछ। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेक्टर्स इन दिस केस। तो आप कोई भी अब क्लोज्ड फिगर जो वेक्टर्स का है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस टेक्निक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई माइनस वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0, बिकॉज यू आर कमिंग बैक टू ओ। चलो दूसरा मैं कराऊंगा आपको, फिफ्थ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी वेक्टर डी वेक्टर एफ वेक्टर एफ ई एफ वेक्टर एफ जी वेक्टर। जरा इसका कर दो, यहां से स्टार्ट हो करके ऐसे जा करके, वेक्टर ए ऐसे जाओगे आप, इस एरो को लेकर के जो भी उल्टा एरो आएगा उसको नेगेटिव कर दो। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी उल्टा आया, प्लस डी वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई उल्टा आया एफ माइनस एफ, ये भी उल्टा आया, ये भी। आप कहेंगे नहीं ये तो एक ही डायरेक्शन में है ना, ये उल्टे इस ए से ना, तो आपने ए और बी को पॉजिटिव लिया, तो जो इस डायरेक्शन को उल्टा आएगा वो तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस वेक्टर जी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई माइनस एफ माइनस जी इज इक्वल टू 0। You are starting from a point
एंड फाइंडिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वेक्टर्स। एल्जेब्रिक सम इसलिए कि कोई पॉजिटिव लिया जा सकता है, कोई कोई नेगेटिव भी होता है, उसको कहते हैं एल्जेब्रिक। मीन्स साइन इज इंपॉर्टेंट, प्लस एंड माइनस बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन वी से द वर्ड एल्जेब्रिक। तो अब जाकर के ये और ये इनको लेफ्ट साइड में रखो, a प्लस b प्लस d इज इक्वल टू, हाँ, प्लस e साथ में, प्लस e साथ में इज इक्वल टू, c को उधर ले जाइए, f को उधर ले जाइए राइट साइड को, प्लस g को उधर ले जाइए, और ये है इक्वेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेक्टर्स। सो दिस पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दीज टेक्निक्स इन वेक्टर्स। तो ये वेक्टर जब आप लर्न करते हैं, ये टेक्निक्स जब आप लर्न करते हैं, तब जाकर अच्छा फिजिक्स आगे जाकर के आप पढ़ते हैं। जब आप इसी चीज़ में कमज़ोरी रखते हो या कमज़ोरी इसी चीज़ में होता हो तो आगे जब आप फिजिक्स करते हो, जनरल फिजिक्स, उसमें आपको मुश्किलात आते हैं। इसलिए आपका ये है कि पहले इन चीज़ों को क्लियर करो। ये जो मैंने टेक्निक आपको सिखाया, इसको प्रैक्टिस करो। 6th पॉइंट, जैसे ये वेक्टर ए है, इस पर मैंने वेक्टर बी रखा, इस पर वेक्टर सी ड्रा किया, फिर वेक्टर डी ड्रा किया, और ये है रिजल्टेंट आर। ठीक, तो क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को आप? वेक्टर आर इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये लिखेंगे ना, ये रिजल्टेंट है इन 4 वेक्टर्स का। जरा वो टेक्निक इस्तेमाल करो जो अभी मैंने बताया, ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करो और ये इक्वेशन हासिल करो। ठीक है, चलो एल्जेब्रिक सम करो, ओ से शुरू करो और वापस ओ पर आओ एल्जेब्रिक सम करके। वेक्टर ए ठीक, प्लस वेक्टर बी राइट, प्लस वेक्टर सी राइट, प्लस वेक्टर डी राइट। अब ये उल्टा है, माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से यहाँ करके वापस यहाँ इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट में आते आते सिर्फ आर ही अपोजिट है, तो फिर से वही इक्वेशन आपको आया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर। सेम थिंग अगेन, तो इसको लर्न कीजिएगा आप। 7th पॉइंट, अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ये जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, कैसे आप जल्दी कर सकते हो। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, चलो ये वेक्टर डी, ये है रिजल्टेंट आर। ठीक, ड्रॉ वेक्टर ए, ड्रॉ वेक्टर ए, देन बी, ड्रॉ बी वेक्टर on the head of A। ठीक, draw vector B on the head of A। C, draw vector C on the head of B। D, draw vector D on the head of C। A, B, C, D, E point। Then draw the vector, or then the resultant is given by drawing vector, by drawing, result is given by the vector, the resultant is given by the vector drawn from the tail of A to the head of D। बस ये चीज,
खूब देख लो अच्छी तरह से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अच्छी तरह से देखो। ड्रॉ वेक्टर ए, ड्रॉ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ ए, क्या ड्रॉ? ड्रॉ वेक्टर सी ऑन द हेड ऑफ बी, क्या ड्रॉ सी? ड्रॉ वेक्टर डी ऑन द हेड ऑफ सी, then the resultant is given by the vector, then the resultant is given by the vector drawn from the tail of A, drawn from the tail of A to the head of D, to the head of D। हो गया, बस ये प्रोसीजर है इसका, इसको याद रखो, ठीक, याद रखो इस चीज को। That's the end of the polygon law of vector addition। Now ये रिमेंबर करो, प्लीज रिमेंबर इट, that polygon law of vector addition is used when we have to add several vectors. Also remember, it is the extension, generalization of triangular law of vector addition or parallelogram law of vector addition। triangular law of vector addition या parallelogram law of vector addition का ये extension है, उसका generalization है। Also remember this that in engineering or mechanics it is used to add forces, it is used to add velocities, it is used to add displacements, because it is used to add too many vectors at the same time। That's all। चलो मैं आपको सिखाता हूं अब, एन इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं मैं आपको, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1। अब यह क्वेश्चन आपको आने चाहिए, अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ा, सब टॉपिक पढ़ा, छोटा सा टॉपिक पढ़ा, तो उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए। जैसे ये, द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, थोड़ा सा यहाँ ये नजर नहीं आता है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं व्हाट देयर कुड बी। The polygon law of vector addition states that if a number of vectors are represented in magnitude and direction by the sides, यहाँ होगा by the sides of a polygon taken in order, then their resultant is given by बताइए, the longest side of the polygon, no sorry the closing side of the polygon taken in the opposite sense, yes, the first side of the polygon, no, the diagonal of the polygon, no, the closing side of the polygon taken in the opposite sense। ये थोड़ा सा इसमें नहीं आया है विद इन द विड्थ ऑफ द पेज, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया जब हमने इसको फोटो स्टेट किया, या फिर टाइपिंग का मिस्टेक है। हो गया, बी इज द आंसर। चलो, द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉज। Lamb's law, no. Parallelogram law of vector addition, yes. Triangular law of vector addition, yes. Both B and C। अभी बताया मैंने आपको, जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इट्स अ जनरलाइजेशन, एक्सटेंशन ऑफ व्हाट एंड व्हाट? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हो गया। इन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ पॉलीगन closes, resultant of all vectors is, if in the polygon law of vector addition, if the polygon closes up, अभी मैंने आपको दिखाया, if it closes up like this, like this, like this, like this, like this, closes up में ये है कि tip of the lost touches the tail of the first, tip of the lost touches the tail of the first, ऐसे 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 और ऐसे, दिस डज नॉट बिकम रिजल्टेंट। ये क्लोजअप हो गया, रिजल्टेंट के लिए कुछ बचा ही नहीं, जीरो आंसर। अभी बताया आपको, अगर आपने लेक्चर पूरा देख लिया हो। थर्ड, if four vectors acting on a particle form the sides of a quadrilateral taken in order, then the resultant is given by diagonal of the quadrilateral, no, the side of the quadrilateral not included, no, the closing side of the quadrilateral in the opposite sense, yes, C is the answer। अगर ये quadrilateral है,
ए बी सी, ये डी है, तो ये है रिजल्टेंट। अगर ये डी में लिखूंगा ये रिजल्टेंट है, बट इट हैज टू बी टेकन इन द अपोजिट सेंस। सी क्लोजिंग साइड टेकन इन द अपोजिट सेंस। हो गया। The polygon law of vector addition can be used when only two vectors, no, more than two vectors act on a body simultaneously. Yes, the vectors are collinear. No, vectors are scalar. No, how can the vectors be scalars? This is absurd. लेकिन आंसर है more than two vectors acting on the body simultaneously. Only then you use polygon law of vector addition. हो गया समझो, ठीक। Which of the following is not true about polygon law of vector addition? Vectors must be represented in magnitude and direction. It is true. Vectors must be represented by magnitude and direction by the sides of the polygon. Yes, that is true. Vectors must be arranged in head to tail. Yes, that is also true. The order of arrangement does not matter. Doesn't matter. Resultant is equal to the algebraic sum of the magnitudes. No, not algebraic sum of the magnitudes. Which of the following is not true? ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द, वो ये हुआ रिजल्टेंट ऐसे, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स हुआ ऐसे। ये गलत है, अभी मैंने बताया। दिस इज नॉट ट्रू, डी इज नॉट ट्रू। रिजल्टेंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स इज नॉट ट्रू। The order of the arrangement does not matter. Definitely it does not matter. Vectors must be arranged head to tail. Yes, that is true. Vectors must be represented in magnitude and direction by the sides of the polygon. Yes, that is also true. हो गया। Seventh, the polygon law of vector addition is particularly useful. यहाँ यह useful है, मैं just imagine कर सकता हूँ। Solving problems involving only perpendicular vectors. No, why should? Only parallel vectors? No. Multiple concurrent vectors. Concurrent vectors means those vectors which are acting at the same point. वो आगे जाकर फिजिक्स में आपको समझाऊंगा। Vectors must be concurrent. Concurrent means vectors, forces or anything like that, they must act at a particular point. मगर ये मत समझो कि आप कभी इसको मिसअंडरस्टैंड करते हो। इसका मत, ये जो वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर्स, इनको मत समझो कि दे आर एक्टिंग, वन इज एक्टिंग हियर, अदर इज एक्टिंग हियर। ये ज्योमेट्री है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फिजिकल सिचुएशंस, इट इज ओनली ज्योमेट्री। तो वो मैं आपको बताऊंगा व्हाट वी मीन बाय वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, वी कॉल देम कनकरेंट वेक्टर्स। तो वो आगे जाकर फिजिक्स में डिस्कस होगा विद इन 1 or 2 डे। तो फिलहाल आंसर जो है वो है इन्वॉल्विंग सी, मल्टीपल कनकरेंट वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स जहां पर इन्वॉल्व हों, ठीक। 8th, if three forces acting on a particle are represented by the sides of a triangle taken in order, the particle will be at rest. ऐसे देखो, ये एक वेक्टर है, समझ लो आप, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये तीसरा वेक्टर है सी, ये एक ही सेंस में है। तो बताइए इनका रिजल्टेंट क्या है? इट इज द टिप ऑफ द लास्ट टचिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट। इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 है, इनका रिजल्टेंट 0 है। ये कह रहा है कि इफ 3 फोर्सेस, अगर 3 फोर्सेस ऑफ ए पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, अगर ये तीनों फोर्सेस है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, इसका मतलब जब ये 3 फोर्स एक पार्टिकल पर एक्ट करेंगे उनका तो रिजल्टेंट 0 हो गया, बिकॉज दीज वेक्टर्स क्लोज अप, बिकॉज हेड ऑफ द लास्ट टचेस द टेल ऑफ द फर्स्ट, मीन्स these 3 forces when they act on the particle, the resultant force will be 0, because these forces are represented like this, because the last force touches the tail of the first. हो गया ना रिजल्टेंट 0। जब रिजल्टेंट 0 हो गया means the net force on the particle is 0. When the net force on the particle is 0 means particle should be at rest or it should move with a constant velocity. तो ये मोस्ट appropriate आंसर at rest है। वैसे ये भी आंसर हो सकता है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि आगे जाकर हम फिजिक्स में ये पढ़ेंगे कि अगर नेट फोर्स पार्टिकल पर 0 है, या तो पार्टिकल रेस्ट में रहेगा या फिर वो पार्टिकल
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एट रेस्ट आएगा। ठीक हो गया। 9th, the Polygon law of vector addition is also called law of independence of vectors, no, law of closure, no, law of composition of forces, ये भी, क्योंकि इसमें सुपरपोज करते हैं फोर्सेस को, कंपोज करते हैं फोर्सेस को, ये भी इसका एक नाम है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ये भी एक नाम है इसका, याद रखने में कोई हर्ज नहीं। Which mathematical operation is fundamentally represented by polygon law of vector addition? कौन सा ऑपरेशन आप पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हो? नहीं। स्केलर प्रोडक्ट करते हो? डॉट प्रोडक्ट करते हो? भाई क्या करते हो? स्केलर मल्टीप्लिकेशन नो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नो, वेक्टर एडिशन यस, डॉट प्रोडक्ट नो, सी इज द आंसर। ये 10 क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे तो समझो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर हो जाएगा। आगे जाकर अप्लाई करना है in a very hard way. In a very hard way it has to be applied to the problems, situations here and there. लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से देख लो, बाद में इसको अप्लाई करके देखो फिजिक्स कैसे इजी हो जाता है। Because I had this experience of teaching physics. Once these things are very clear and you do it many a times, do a lot of practice with it, it should be on your fingertips. तब जाकर फिजिक्स करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। वरना इसी में कमज़ोरी रहेगी और फिर फिजिक्स करते रहो, क्या करोगे फिजिक्स। सो टुडेज लेक्चर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को 2 बार पढ़ो और ये ऑब्जेक्टिव्स कर लो, कंसंट्रेट करो जो मैंने पढ़ाया, तो आगे जाकर और भी लेक्चर आपको मिलेंगे और वो आपको आसान लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल तांत्रिक सर फिजिक्स क्लास। थैंक यू।